एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है ये, राइट ना। हाइजेनबर्ग ने कुछ स्टेटमेंट दिया था बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। तो पहला स्टेटमेंट जो हाइजेनबर्ग ने दिया था, दैट वाज dp into dx is greater than equal to h by 4 pi. Now understand one thing, what is dp? What is dp? Error in momentum. Derivative of P. Error in calculation momentum. Derivative तो है ही। Uncertainty. Uncertainty in Momentum. 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 What is dx? Error in Error. Uncertainty in Position. position. Uncertainty in position. सर आप थोड़ा बड़ा लिखो ना। मोबाइल यूज कर रहे हो? हाँ यस सर। Okay, after this I'll write bigger. ठीक है। Yes. What is h? Planck's constant. Planck's constant. Planck's constant. constant 4 pi तो 4 pi होता है, right? The Planck constant is 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule seconds. ठीक है। And one more important thing which I am writing over there is very important, right? Just always remember this particular thing. Getting it? हमेशा SI यूनिट्स यूज करना है, मास केजी के अंदर, योर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, योर व्हाट dx is in meter. Getting it? Now understand one thing, we will solve one question based on that stuff. ठीक है। This is the very first equation given by Heisenberg. dp into dx है। क्या? dp into dx है ना? हाँ, dp into dx है। अच्छा एक और चीज सुनना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? mv. Mass into velocity. Into velocity. Momentum is equal to mass into velocity. वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, मास पर्टिकुलर चीज का कांस्टेंट होता है? हाँ तो यस सर। Yes, sir. बाय dv कितना आएगा? dv by dt। अरे हाँ, अगर सपोज करो y इज इक्वल टू 5x है, तो dy बाय dx कितना आता है? x नहीं 5 हाँ, तो अगर p इज इक्वल टू Pi. mv है, तो dy सर आवाज लैग हो रही है। नहीं सर बराबर है सर। B. m. m आएगा m। बरोबर है, आएगा क्या? क्या m? Now understand one thing, dp will become equal to mdv. Now Heisenberg equation will become m into dv into dx is greater than equal to h by 4 pi. Done guys? लिख लिया इसको? एक मिनट सर, एक मिनट। सर dv is equal to md v लिखा है, mdx लिखा है। देखो mdv dx लिखा है is greater than equal to h by 4 pi, because mdv जो है वो dp के इक्वल है, करेक्ट? अरे dp is equal to m होगा ना फिर? क्या होगा? dp। अच्छा नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा दूसरी चीज सुन लो, न्यूमेरिकल के लिए ना ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू यूज करोगे, गेटिंग इट? तो मिनिमम अनसर्टेनिटी निकालोगे। Could you explain again? विच पार्ट बेटा? तो मेरे को पूरा सुनाई नहीं दिया। अच्छा मैंने बोला हाइजेनबर्ग का जो पहला इक्वेशन था, दैट इज dp into dx is greater than equal to h by 4 pi. dp क्या है? dp is error or uncertainty in momentum, dx is error or uncertainty in position, which is greater than equal to h by 4 pi. h is Planck's constant
एंड 4 पाई तो बस सबको पता है 4 पाई क्या होता है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू वी कम टू नो दैट। नाउ अंडरस्टैंड दैट मोमेंटम, नाउ अंडरस्टैंड दैट जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू mv। तो dp बाय dv क्या हो जाएगा, m। Yes, sir. वेरी गुड। so dp will become equal to mdv, sure। Hmm. so dp is equal to mdv, so simply put this dp over here, so I'll be getting mdv into dx is greater than equal to h by 4 pi, getting it? Yes, sir. Yeah। सर इसका डेरिवेशन नहीं है। नहीं, तुम्हारे करिकुलम में इसका डेरिवेशन नहीं है, it doesn't require। oh why this wallpaper is on fire? पता नहीं सर। and why m only? what about o? सर सरनेम एम से है सिर्फ इसलिए, ओ मिला नहीं। अच्छा oh Sir, what is that O लिया। sign? हाँ, That less than or equal to, what does that mean? Why not just equal to sign? it is greater than or equal to, this is greater than or equal to h by 4 pi, or for numerical purposes you have to use equal to only, getting it? Okay. हाँ, तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, पहले सारी इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। आगे चलें गाइस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now Heisenberg's second equation, which is like very important, right? Now it is for circular motion. अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करता है तो इट विल बी योर दिस वे, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट ये सेंटर हो गया, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, लेट्स से पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो एक पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, सो इट विल बी लाइक रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस अराउंड द सेंटर, राइट, रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब ये पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू t पर यहाँ तक पहुंचा होगा, तो दिस इज द डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, दैट डिस्टेंस इज x, this is radius r, and this angle which it has covered is theta। जो थीटा होता है ना, that is known as angular distance। क्या बोलते हैं? Angular Angular distance. Angular distance. Very good, so proud of you। and what is x? That is distance, right? And r given as radius। Good। now understand that small change को Sir, क्या बोलते हैं? sir, हाँ, Delta. d। dx। हाँ, हाँ, तो sorry, dx. अगर स्मॉल चेंज है ना, स्मॉल एरर है, तो लेट्स से एक स्मॉल एरर मिला मेरे को dx का, और ये क्या हो जाएगा उस केस के अंदर, एंगल जो है alpha. Uncertainty. this d angle theta. will become equal to d theta। Agreed? Agreed। now understand one thing, दो हाइजेनबर्ग ने एक और इक्वेशन दी थी, and that equation was your d theta into dl is greater than equal to h by 4 pi। now what is dl? error in angular momentum। क्या होता है? Angular movement. Error in angular momentum. good। what is d theta? Error in angular distance। Angular Angular distance. Distance। very good, great। sir, can you use सर एक बार एंगुलर डिस्टेंस बताओगे? pointer? Two pointer look distracting। ये एक ही पॉइंटर है, this is one pointer only।
और अगर ये पॉइंटर चला गया ना तो इट विल बी नहीं लुकिंग, वो पहले प्लस वाला था नहीं थे। देखो कैन यू सी अ पॉइंटर राइट नाउ? No. No, No, sir. sir. No, Now sir. it become very haphazard if I'm not using a pointer here. Now हाँ when सर समझेगा नहीं. using this thing, so it will be looking a sudden thing appear on the screen. ठीक है? से पॉइंटर यूज करो. Okay. सर एक बार वो एंगुलर डिस्टेंस बताओ ना. अभी क्या बता वाला है? एंगुलर डिस्टेंस बता रहा हूँ. अगर सपोज करो एक पार्टिकल यहाँ पर है, अगर इस पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस x कवर किया तो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंगली सेंटर से कोई एंगल थीटा कवर किया होगा, राइट? तो जो थीटा कवर किया ना इस पार्टिकल ने उसे कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस. क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्टेंस. वेरी गुड, थीटा करेक्ट को. डिस्टेंस है, करेक्ट. यस सर. अब सुनना ध्यान से. ये पार्टिकल विद अ मास m, सपोज करो ये पार्टिकल का मास m है, राइट? Yes, sir. यस सर. वेट. दिस पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में ना, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो एक बार बताओ अगर ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी वेक्टर कहाँ होगा? इस पॉइंट पे. टेंजेंट. Ix. Tangent perpendicular to radius. At a tangent, right? Like this. Yes, sir. Very good. Now this is the direction of velocity. Any doubt in that? No, sir. No. Very good. This is radius. Do you know what? A mass of this particle is m. So m is mass. Now angular momentum का एक formula होता है. It is a vector quantity and it is known as MVR. r cross p. क्रॉस प्रोडक्ट पता है तुम लोगों को? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. हाँ अगर Sin r theta क्रॉस वाला p है तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो वेयर इज द मोमेंटम डायरेक्शन? सेम, बिकॉज मोमेंटम जो होगा दैट p विल कहाँ बी पे है? इक्वल टू मास, जो एक स्केलर फंक्शन स्केलर अमाउंट है, इनटू वेलोसिटी. जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, हाँ या ना? जी हाँ. Yes, sir. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस? डायरेक्शन ऑफ रेडियस विल बी टुवर्ड्स आउटसाइड r. यस. मोमेंटम ऊपर है तो r क्रॉस p कितना एंगल है ये? 90 degree. 90 degree. Momentum is equal to r cross p, which is equal to rp sin. Sin theta 90. तो rp हो जाएगा हाँ. mv और r क्या है? r. तो mvr होता है ना एंगुलर मोमेंटम, याद है? बोर अंकल ने. हाँ. Yes. So that is equal to mvr, correct? Sir, Yes. could you explain again from that vector part? Velocity. सर वो L वेक्टर क्या है? Error in Angular angular momentum. momentum. Actually speaking ना, पता है क्या? पता है क्या? क्या sir? क्या? चलो छोड़ो, नहीं बता रहा. बात दो ना सर. हाँ नहीं बता दो sir. नहीं कर रहा, नॉट फीलिंग. बता दो सर. अच्छा रुक जा, बताता हूँ. खिचड़ी जम गई है इधर. नॉट लाइकिंग इट टू. और एक और डायग्राम बना लो. ना वही कर रहा हूँ बेटा. देखो बाप, क्या हुआ sir? कुछ नहीं, टेक्निकल इश्यूज. हाँ मैं डर गया. चलो कोई बात नहीं, होता रहता लाइफ में, बट लाइफ में डरना मत कभी, ठीक है? नहीं sir, ऐसा नहीं डरता. बट आपने अचानक जोर से बोला तो अजीब ही लगा मेरे को. ओके ओके, लिसन. सुनो, Yes, sir. ये जो पार्टिकल है इसका मास m है, करेक्ट? Yes, sir. ये रेडियस का वेक्टर है, ठीक है? Hmm. नाउ अंडरस्टैंड दैट वेलोसिटी का डायरेक्शन किस साइड होगा?
जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी शुड बी अलोंग द टेंजेंट, राइट? तो अगर मैंने टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी ड्रॉ किया तो वेलोसिटी का जो कर्व हो, जो डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, बिकॉज मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम का लाइन आ गया, राइट? डायरेक्शन आ गया। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जो एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है, ठीक है? तो R और P के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 degree. तो shall I 90 degree. say that it will become R into P sin theta. हाँ सर। तो sin theta is sin और 90. ये L ZX मतलब बाहर के Z एक्सिस पे होगा ना? हाँ, obviously because R cross P तो will be like U ऊपर जाएगा, correct? हाँ, screw नहीं तो कौन सा करूँ? हाँ, will be coming up. So the direction of the angular momentum will be like this on the top. ऐसे दिखाते हैं टॉप को. So it is coming out this out of. हाँ. हाँ, और Sin क्रॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? R into P and I'll be getting MVR. तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला आ गया that is MVR. Agreed? यस सर। अब मेरे को क्या बताओ, रेडियस कांस्टेंट है, करेक्ट? यस सर। कांस्टेंट है, राइट? तो dl by dv किसके इक्वल होगा? अगर मैंने इस इक्वेशन को MR के इक्वल किसके इक्वल होगा? MR के इक्वल R mr, right? तो dl by dv is equal to mr. So shall I say that dl is will become equal to m into r dv. That is uncertainty in angular momentum will be equal to m into r into uncertainty in velocity, correct? yes yeah Yes, sir. Yes, sir. So सुन लो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब एक और चीज, ठीक है? अगर बचपन में तुमने एक पैरेलैक्स थ्योरम करी होगी जिसमें तुम इस तरीके की चीज एनालाइज करते हो, तो ये डिस्टेंस जो है वो dx है, यस सर। ये है d थीटा. सर कॉर्नर में आपने क्या लिखा है सर? किसमें? कॉर्नर में सर, क्योंकि आपका मतलब वो वीडियो दिखा रहा है सर कॉर्नर, ये क्या लिखा वो है आपने? पैनल वहां से हटा दे, दिख जाएगा। हाँ, अब किस कॉर्नर पे तेरे को वीडियो दिख रहा है? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, किधर? एकदम राइट साइड वाला, वो अरे, DL राइट कॉर्नर। एंगुलर मोमेंटम फोन में नहीं हिलता। हाँ सर, उसमें एक मिनिमाइज का ऑप्शन होगा। शो स्मॉल स्पीकर वीडियो वगैरह वो कर। ये क्या आया? रुक जाओ. ओके ओके, नाउ लिसन. इतना समझ में आया तुमको? कहो हाँ. हाँ सर यहाँ पे dx है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज dx, दिस इज r एंड दिस इज d थीटा. कहाँ से आया? यहाँ से आया. दिस इज dx, this particular thing is r and this particular thing is d theta. Agree? Yes. Now Yes. understand that dx by r is equal to d theta होता है for a smaller angle. Getting it? ये पैरेलैक्स व्यू जैसा है. हाँ हाँ हाँ, वही है वही है. तो dx जो होगा that will be equal to r into d R theta. D थीटा कोई डाउट इसके अंदर? जी नहीं। वेरी गुड. अब एक काम करोगे छोटा सा, प्लीज. हाँ प्लीज, फॉर गॉड सेक, एक छोटा सा काम करो. इसको लिख दो। dl की जगह ये इक्वेशन डालो तो क्या आएगा? इसकी जगह कौन सा? d थीटा mr dv फ्रॉम 1 2 एंड 3. तो क्या आएगा? dl की जगह क्या आएगा? m into हाँ r into MRDV MR DV into Correct. D थीटा। और d थीटा की जगह क्या डालोगे? dx by r. DX by R हाँ जरा पुट करना, ये क्या आ जाएगा? dx by r is R R कट हो जाएगा 4 pi.
तो R से R गया तो m इंटू dv कितना आ गया? ये डीपी। dp इंटू dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। मतलब ये ओ equation और पहली इक्वेशन में कुछ फर्क है क्या? जी No, sir. नहीं। नहीं। तो दैट इक्वेशन इज अगेन a Heisenberg uncertainty principle in the case of circular motion. Getting it? गॉट इट। समझ में आई बात? सर एक Yes, सर sir. फ्रॉम 1 to 3 से एक बार वापस समझा दो। क्या कह रहे हो? हाँ फ्रॉम 1 to 3 से देखो एक बार मैंने आप क्या किया, d थीटा की जगह ये पुट किया दिस वन, किस and dl की जगह I introduce this thing which I have calculated, right? यस तो जब पुट किया तो मेरे पास आया m into dv into dx greater than equal to h by 4 pi. Getting it? यस सर Yeah. ओके सर Okay बेटा. Done guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर One. Okay, we'll copy that. Third form we will do, then we'll solve problems based on that. M into dv. Yeah. Okay. सर मतलब एरर इन एंगुलर मोमेंटम z एक्सिस पे होगा ना? Error in angular momentum. z एक्सिस पे होगा ना सर? हाँ हाँ correct. Direction z axis पे हुआ, no doubt about it. हाँ आगे चलें guys. यस सर sir. Again होता है. Okay now, listen. Third and the final equation for your Heisenberg uncertainty principle, it says that dE into dt is greater than equal to h by 4 pi, where dE is nothing but uncertainty. in energy. Yeah, in energy. एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या जूल्स? जूल्स ऐसा ही है ना. dt क्या होगा? हाँ ऐसा ही है। अनसर्टेनिटी इन टाइम. टाइम। ठीक है. अब एक बात बताओ. ओके, कभी ये सुना है फिजिक्स के अंदर that dw is equal to f dot dx? नो सर वर्क डन। हाँ, वर्क डन। work done is equal to force dot displacement. यस सर ये सुनना है. Yes, वर्क sir. डन। Yes, sir. Dot product sir, of सुना force है. and लगाया displacement. f इस पर्टिकुलर बॉडी पे and it displaces by dx, तो dw क्या हो जाएगा? f dot dx. है कि नहीं? हाँ, sir. हाँ हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, अगर ये x में मूव करता तो वर्क डन में निकालता f dot x. करेक्ट? Yes, sir. dw by dx is equal to f आता, तो dw is equal to f dot dx आ गया. कोई डाउट? सर डी कहाँ गया? क्या मतलब? नहीं गया डी का आपकी. नेटवर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट, राइट? वो Okay, फॉर्मूला okay. लिखा है. ओके हाँ, ओके दिया All ना। work done is equal to force into small displacement, right? अच्छा, वर्क का यूनिट्स क्या होता है? Joules. Joules. एनर्जी का यूनिट्स क्या होता है? Joules. Let's say that dE, uncertainty in energy or error in energy, should be equal to f dot dx, because दोनों सेम ही चीज है. भैया जितना काम करे उतना एनर्जी दोगे ना, यस सर राइट? हाँ सर। तो f क्या आएगा? व्हाट इज f? f का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? f इज इक्वल टू मा होता है ना, ma. यस सर हाँ अच्छा, मा क्या होता है? Thermodynamics.
मास Mass into इक्वल टू acceleration. dv by dt. dv by dt. Yes, sir. Lot of you. तो हाँ, f हाँ. को इधर पुट करो तो d क्या आ जाएगा? m dv dx by dt. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो. इतनी मेहनत करिए तुम लोगों ने फ्रॉम 1 and 2. तो फ्रॉम 1 Sir, dw को de कैसे लिखा? m dv dx by dt into dt अरे वो अलग इक्वल टू h by 4 pi. तो क्या होगा? इंटू dt क्यों? dp into dx. चेक कर. d को पुट किया है ना, dt अरे वो dt है ना नीचे. ओह ये गया ओके 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 m into dv क्या आया? d अच्छा 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 ये भी गया into dx dp into dx is greater than equal to h by 4 pi. Any doubt? सर No, dw sir. को d कैसे लिखा सर? क्या कैसे लिखा बेटा? dw मतलब dw की जगह d कैसे लिखा? बिकॉज जितना काम करोगे उतना एनर्जी देना पड़ेगा ना बेटा. व्हाट इज दैट? इसका भी जो यूनिट है वो जूल्स होता है, इसका भी यूनिट जूल्स होता है. अच्छा. Yes sir. Right? हाँ. Hey guys, understood? Yes, sir. Yes, So sir. you got 3 equations where you can apply Heisenberg uncertainty principle. Correct? Yes. Okay. Shall we move ahead? एक मिनट सर ये लिखना है. 2 मिनट सर. और आपने dp कैसे लिखा? क्या लिखा बेटा? dp क्यों लिखा? पता नहीं मैंने डी कैसे लिखा? dp end में dt. देखो d dv. is greater than equal to h by 4 pi. That was given by Heisenberg, right? तो अगर ये ऑलरेडी हाइजेनबर्ग ने दे रखा है तो मैंने क्या किया कि d का डेरिवेशन लिया तो ये आ गया. दिस ऑल केम बाय द डेरिवेशन ऑफ de. d को मैंने यहाँ पे पुट किया into dt से मल्टीप्लाई किया and I got again from this part that dm into dv dx by dt into dt. यहाँ से आया dt से dt गया, बचा गया m dv into dx is equal to greater than equal to h by 4 pi. m dv dp होता है, dx dx होता है greater than equal to h by 4 pi. मतलब जो इक्वेशन हाइजेनबर्ग ने पहले दी थी और ये वाली इक्वेशन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा आई एम गेटिंग द सेम थिंग. करेक्ट? yes. तो दोनों के अंदर कोई भी फर्क Yes, sir. नहीं है. सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना इसके पहले वाला. देखो ना आराम से देखो. और आपका vx जैसा लग रहा है. कौन सा v x जैसा लग रहा है? ये वाला? सारे v ये वाला? जहाँ सर. v लिखा है वहाँ पे x लग रहा है. ओके 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 1 सेकेंड. हाँ 1 सेकेंड. और कहीं भी है क्या? नहीं. अभी ठीक है? हाँ सर. हाँ लास्ट स्लाइड. लास्ट स्लाइड. दिस इज लास्ट स्लाइड. हाँ सर हो गया सर. थैंक यू सर. ओके. सर अभी ये तीनों पे न्यूमेरिकल. हाँ अब इन तीनों पे न्यूमेरिकल होंगे. ठीक है ना? न्यूमेरिकल तो दूंगा मैं तुमको अभी. उसमें तुम्हारा मुझे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करना है, किस लेवल तक सोच रहे हो. ठीक है? तो आगे चलेंगे आज. सर Yes, एक बार sir. एंगुलर मोमेंटम क्या था बताओ ना. एंगुलर मोमेंटम था r क्रॉस p, दैट इज r p sin थीटा विच इज इक्वल टू mvr. तो mvr को एंगुलर मोमेंटम कहता है.
Getting a point? Yes, sir. Okay. Question. A bullet of 20 grams is moving with the velocity of 100 meter. 1 second. With a velocity of 100 plus minus 0.1 meter per second. Calculate dp dx. Now understand that करना कैसे इसको. पहले जो मैंने ये वाली चीज लिखी है ना, इसको समझ लो. वेलोसिटी जो दे रखा है तुमको, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड. ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी एरर है. हाँ, तो मतलब वेलोसिटी हो गया तुम्हारा 100 मीटर पर सेकेंड और डीवी कितना हो गया? 0.1. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर प्लस माइनस नहीं होते, इसका मतलब ही एरर होता है. अच्छा, इसका मतलब ही एरर होता है. हाँ, तो तुमको समझ में आया कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी एंड दिस विल बिकम योर एरर. एंड अंडरस्टैंड दैट अगर मुझे मोमेंटम निकालना है विच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी और मुझे डीपी निकालना है, दैट विल बिकम एमडीवी. तो डीवी की जगह मैं ये यूज करूंगा और मोमेंटम निकालने के लिए मैं वी यहां से लूंगा. गेटिंग अ पॉइंट? हाँ सर. वेरी गुड. तो वेलोसिटी ये लूंगा, एरर ये लूंगा. समझ में आया इस एक्सप्रेशन का मतलब? Yes, सर. Yes, sir. नाउ डीपी निकालो और डीएक्स निकालो. तो वापस सर हमेशा ऐसे प्लस माइनस नहीं, ये एक तरीका है, और भी बहुत तरीके होते हैं. या समन आस्क्ड मी, दोबारा से बताने के लिए किसी ने मुझसे बोला, मैंने बोला कि अगर वेलोसिटी मेरे को ओवरऑल 100 प्लस माइनस 0.1 दे रखा है तो ये एक्चुअल वेलोसिटी होता है और ये एरर होता है. तो जहाँ पे वेलोसिटी यूज करना है वहां पे 100 यूज करना है और जहाँ पे डीवी यूज करना है वहां पे 0.1 यूज करना है. अंडरस्टूड? yes, sir. Great. Now calculate dp and dx. Sir, dp into 10 to the power minus 3. हाँ, ऐसा में लेना है इसलिए. हाँ, हाँ सर वही है. okay. सर मतलब डीवी इज एरर ऑफ वेलोसिटी. हाँ, मैं इतनी देर से यही बोल रहा हूँ. डीवी इज एरर इन वेलोसिटी. अनसर्टेनिटी इज एरर. गाइस लिख लिया? हो गया? सॉल्व किया? सर डीएक्स कैसे निकालेंगे? यस सर, हो गया. हाँ सर. हाइजेनबर्ग ने ना ये इक्वेशन बहुत शिद्दत से बना के दी, तुमको पता है? अच्छा, हाँ समझा. अरे सर सर मैंने आपको उसको यूज करके आ जाएगा वो. सर मैंने आपको डीपी का वैल्यू भेजा था, सही है क्या? डीपी का वैल्यू मैंने भी भेजा है सर. सही तो लग रहा है वैसे. मैंने भी भेजा है.
बट 4 0 का को 3 आएंगे। नूतन एक बार अपना आंसर चेक करो। श्रीकांत ठीक है, गौरव Thank you. एंड या गर्व का बराबर है। हाँ गर्व का बरोबर सर है। मैंने भेजा है सर, वो Thank you, बराबर है। नूतन अपना एक बार 0 चेक कर। हाँ बाकी बरोबर है। या निरंजन डीपी इज सर करेक्ट। 0 की जगह ओ लिख दिया। तो पाई को 3.14 ना। पाई को 3.142 लेना। ओके। या कर। सर सॉल्व करते वक्त ग्रेटर देन इक्वल टू को इक्वल टू लेना है ना, हाँ आपने बोला था सर पहले, हाँ अभी याद आया। हाँ, मैंने कहा था मिनिमम एरर निकालना है तो इक्वल टू लेना। ओके ओम। सॉल्व करें इसको। 1 मिनट सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके ओके सलोनी। ओके तन्मय। सलोनी एक बार अपना आंसर चेक करो। डीएक्स का थोड़ा सा लोचा लग रहा है मेरे को, बाकी सब ठीक है। देखते हैं गाइस, मैं तुमको और क्वेश्चन देता हूँ ना, इसको खत्म करते हैं अभी, है ना। सर मैंने ये भेजा सर, मेरा ठीक लग रहा है क्या? हाँ ठीक तो लग रहा है, बट 32 नहीं आना चाहिए था। एक बार देख लेते हैं। सुनो 31। ओके नाउ लिसन। सर मेरा अरे अभी सॉल्व हो रहा है ना, देख लो। सही है। सॉल्व से पहले राइट हुआ तो अलग मजा आता है। हाँ तो खुशी मिलती है। पॉइंट ठीक है ठीक है। ओके नाउ डीपी इंटू डीएक्स, डीपी एंड डीएक्स निकालना। नाउ डीपी इज वेरी सिंपल राइट, वेरी पीसफुल। इट इज एम इंटू डीवी, करेक्ट। यस सर। अरे डीवी है Yes, डीएक्स sir. नहीं है। मास कितना है? Yes, sir. That is 20 into 10 raised to the power -3 kg. Error in velocity is 10 raised to power कितना? 0.1. -1. So what I'll get 20 into 10 raised to power -4, which is equal to 2 into 10 raised to power -3. That is the value of dp. Everyone would have got that, right? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Very good. So proud of you. Okay. ये बता ही दिया था आपने स्टार्टिंग में। Okay, very good. Now dp into dx is equal to h by 4 pi. 4 into 3.142. Now dx comes out to be 6.63 into 10 raised to power -34 divided by 4 into 3.142 into dv. dp कितना निकाला हमने? 2 into 10 raised to power -3. हाँ, Yes sir. Okay, now listen. 10 to power -1 और 31 हो जाएगा। very good. -30. अच्छा एक बात बताओ, 2 से अप्रोक्सीमेटली ये 2 से जाएगा, वैसे बहुत गलत हो रहा है बट ठीक है। 2 से गया, करेक्ट। हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली 0.25. 0.5 into 10 raised to power -32 हो जाएगा। हाँ.
because 0.25 को 2.5 लिखोगे तो 10 minus 32 आ जाएगा, करेक्ट? यस सर, सही है। ओके ओके ओके, ये आंसर आ गया। डन। सर 32 यस सर। बेटा 32 इसलिए आया क्योंकि 1/4 क्या हो गया, 0.25 ना, हाँ तो 2.5 लिखा है, तो एक अच्छा 10 यहाँ पे इधर कम से करना 0 पड़ेगा, करेक्ट? हाँ हाँ यस सर। Yeah, I'm so good in that. Yeah, correct. आगे चलें, Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। Okay. Okay. Now, okay. Now, what we'll do? Nice question we'll formulate. Okay. Srikanth The Superman. is moving सर किसी और को Well- लेना सर। is with a velocity of Srikanth Velocity सुपरमैन ज्यादा अच्छा था सर। with the सुपरमैन इज velocity of कितना कितना श्रीकांत भागेगा? लकी है। Okay. सर 20 मीटर था। ना 20 मीटर कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। सर क्यों सर? ठीक है, and having uncertainty in velocity of 0.01%, ये इसका एरर है। Having uncertainty of 0.01% in velocity. Mass of Shrikant 2 kg। ए चुप। is equal to 40 grams. Oh, Sir? 40 kg. थैंक Sorry. यू थैंक यू। सर कल सर बढ़ाया था सर अपने नहीं थोड़ा। नहीं, कोई नहीं, 40 kg, right? Now, Sir, 40.5 था। अच्छा, calculate dx, calculate dp, calculate d lambda also. What is d lambda? वेवलेंथ। Error in मीटर वेव। वेवलेंथ श्रीकांत क्या मैटर है कि लाइट है? मैटर है। मैटर। मैटर है। तो Matter. assume Shrikant will be moving like this. आई मैटर यू नो। सर हम भागते वक्त तो स्ट्रेट ही भागते हैं ना पर। अरे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं ना, क्या है दिक्कत? अच्छा ठीक है, ये श्रीकांत। Done. ये सदा। Solve this question on answer. हाँ, ओके ओम।
ओके, 1 second. dx आई गेस इतना नहीं आएगा, ज्यादा ही कम आएगा वो. ओके गाइस, सबसे पहले तो ये बताओ कि वेलोसिटी कितना है श्रीकांत का? 40 10 मीटर पर सेकंड. हाँ, 10 मीटर पर 10 10 meter मीटर per पर सेकेंड. second. अच्छा, dv कितना है? 0.001. 0.01% 0.01% of अच्छा, परसेंट 10. 10 तो 0.01 0 by 0 divided. 0.00 ना सर? करेक्ट Hmm. है ना? इसका ये हाँ. मतलब हुआ ना? हाँ सर. यस सर. तो 10 raised to power -3 आ जाएगा. कोई डाउट? No, sir. ग्रेट, नहीं सर. No, sir. वेरी गुड. नाउ डीपी क्या होगा? या डीबी कितना हो जाएगा? एमडीवी. ओके, गुड. सर ये तो पिछले वाले ऐसे हो. हाँ हाँ, करेक्ट, पिछले वाले से ही होगा. अभी सुनो, m इंटू डीवी, m इंटू डीवी होगा. 1 second. डीपी इज इक्वल टू m इंटू डीवी. m कितना है श्रीकांत का? 40. 40. तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻² kg मीटर पर सेकेंड. दैट इज द एरर इन मोमेंटम. करेक्ट? हाँ, sir. Okay, Shrikant, correct. Now, what about this thing? What is that? dx. dp into dx is equal to h by 4 pi. 4 pi. सबने लगाया ये? यस सर. हाँ सर. So, Very good. So what is dx? 6.63 into 10⁻⁻34 into divided by 4 into 3.14 into 4 into 10⁻⁻². Agree? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very good. तो तुमने क्या किया होगा? ला ला 3.14 put 6.62. ला 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 ला. Correct? So I'll get 1/8 into 10⁻⁻32. वो डीपी पे आपने डीवी नहीं ऐड किया, मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया? किया ना, डीपी निकाल लिया ना हमने पहले ही. सर 40 इंटू 10⁻³ तो एसआई में लिया तो मास होगा ना सिर्फ उतना. बेटा एम डीवी है वो, तो डीपी हुआ कि नहीं हुआ? और एसआई में लोगे तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड ना. बेटा मैंने मास लिया केजी के अंदर, मैंने वेलोसिटी एरर लिया मीटर पर सेकेंड के अंदर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डीपी आ जाएगा ना. मास 40 पहले से केजी में है ना? हाँ यस सर. हाँ. तो 40 का एक जीरो या प्लीज माइनस ग्राम तो माइनस नहीं करने 3. देंगे ना. हाँ, मतलब कैसे, मतलब श्रीकांत कैन नॉट बी इन ग्राम्स, राइट? हाँ. ओके, लिसन, इतना समझ में आया? हाँ Yes, सर. It will be like 0.125 into 10⁻⁻32, which comes out as 1.25 into 10⁻⁻33. हाँ, ये आ गया. Thank you. करेक्ट? ये Yes, dx sir. है तो यूनिट्स किस में आना चाहिए? मीटर्स के अंदर. करेक्ट? जी हाँ. ये dx है. कोई डाउट? जी नहीं. नहीं सर. No, sir. अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अब एक चीज रह गई, ये व्हाट इज दैट? डी एरर इन डी लैम्डा. डी लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे? h by d momentum. वेरी गुड, lambda is equal to h by p. वेरी गुड. हाँ. लैम्डा इज इक्वल टू H h by बाय p. p. अभी डी लैम्डा is equal to h h by dp. वाह मेरे शेरो, मतलब तुम बनोगे इंजीनियर. Wrong. कर लो इंजीनियरिंग में.
सर नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सर, गलत LMP डिफरेंशिएट होगा होगा ना P सर? square सर डिफरेंशिएट होगा, आएगा हाँ डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट। माइनस एच बाई पी स्क्वायर डीपी। अब मुझे एक बात बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है, तो डी लैम्डा बाई डीपी किसके इक्वल होगा? माइनस एच बाई पी स्क्वायर। माइनस एच बाई पी स्क्वायर स्क्वायर होगा, डीपी। पाई पी माइनस एच बाई पी स्क्वायर, एग्रीड? yes तो कैसे आया? फिर उधर अच्छा डिवाइड Sir, can you डिफरेंशिएट किया, explain this, please? डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएटेड। क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह बताओ। y इज इक्वल टू 5/x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? माइनस 5/x स्क्वायर। माइनस 5/x स्क्वायर। हाँ, तो अगर अरे एक को ऊपर लेके x रेस टू अगर -1 लैम्डा इज लेंगे ना, इक्वल टू एच बाई पी है, जिसमें लैम्डा एच कांस्टेंट है, तो 5 की जगह k आ गया, h आ गया, तो डी डी लैम्डा लैम्डा बाई बाय डी कितना होगा? एच बाई पी स्क्वायर माइनस एच बाई पी स्क्वायर। I want to calculate d lambda, right? ऐसा तो कभी मत करना, h is equal lambda is equal to h by p, so d lambda is equal to dh by dp. Understood? ये कहते बच्चों वाली हरकतें करी इसमें। Hey, done guys? यस सर। Yes, sir. ये तो Yes. क्लियर। और हाँ, अब मुझे बताओ क्या करना है इसमें। हाँ डीपी को उस साइड लेके चले जाए। हाँ, डीपी को उस साइड ले जाएंगे। क्यों फिर जाने value- दूं? Why should I leave that thing? There are two methods to retain the things permanently in the brain. Either you beat or either you scold, or either you do some ironical stuff. ये देखो, very good. ये कौन है? किसकी घर की गंदी बची? वो Got it. अच्छा था। Anyways, listen. जो d lambda है वो एरर है ना? हाँ। Seriously. Yes, d sir. lambda एरर है ना? Right? यस सर। तो एक बार Yes, मतलब sir. माइनस या हो या प्लस हो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? एरर तो प्लस नहीं सर, माइनस मैग्नीट्यूड No. नहीं, हाँ, तो मुझे एरर चाहिए, सिर्फ एरर। तो h by p square dt। क्या हो रहा है ये? कौन कर रहे हैं जानबूझ के? रितिशा सर अभी जानबूझ के था। हाँ देखो, आई Sorry sir, वो मेरी मॉम का फोन चला, सॉरी, गलती Okay. से हुआ। चल माफ किया, चल माफ किया। Okay, it's okay. Sometimes these kind of things also happens in life. ठीक है। Anyways, मुझे d lambda निकालना है, correct? Guys, d lambda निकालना है, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। Yes, अब sir. आगे चले। हाँ, चलो। Yes, sir. चलो सर। सर पी तो दिया ही नहीं। वाह अब वाह, कौन बोला ये? Who told? वाह। हाँ सर पता है I टू वी सर, ये मैं कौन बोला ये? मतलब who was that? मैं सर। Who is that? बदतमीज आदमी। Okay, listen. So I got d lambda is equal to your h by p square dp. Correct? Now dp was equal to mdv and p is equal to mv. मास सबको पता है 40 किलो है श्रीकांत का। dv was 10 raised to power -3, करेक्ट? हाँ 40 और कितनी स्पीड से मूव कर रहा था? 10 से, इतना ही था ना? हाँ 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 ये सही है क्या? हाँ हाँ, सही है। सही है। तो इट कम्स आउट टू बी h इंटू डी पी, 40 इंटू 10 raised to power -3 डिवाइड बाय पी स्क्वायर, 400 इंटू 400, राइट? तो देखा जाए तो ये गया 10 पे, 1000 ऊपर आया, 10 raised to power -6, तो h by 4।
सर दस किधर गया? 10 चला जाएगा। क्या कह रहे हो? वो P is equal to MB में जो लिखा है ना 14 to 10, उसका 10 किधर गया? दोबारा बोल हिंदी में। अच्छा ओके, समझ गया ठीक है। समझ गया सर। d lambda is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 into 10 raised to power minus 6 into 4, ये आ गया 1 point कितना 623, that means 5 20 1.6 बस ठीक है, काफी, इतना बहुत हो गया। 1.65 into 10 raised to power minus 40, ये आया सबका। लैम्डा Yes, मीटर sir. में आता है। Yeah, so proud of you. So Shrikant will appear as if he is moving in a straight line because lambda is very less, but actually it will move like this. Thank you. Not well. Thank you. Is okay. Done. 1 मिनट से लिखना है अभी। Okay. सर लेकिन इसका हम लोग लार्जर स्केल पे कहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं? क्या कह रहे हो? इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का लार्जर स्केल एप्लीकेशन क्या है? It'll tell you that it is not possible to calculate the. See, the thing is, for a microscopic particle, right? Once you are dealing with the calculation stuff of these microscopic particles, so you have to take the amount of error into the consideration, right? Then you will get an approximate value with the help of this principle. Okay. ठीक है। तो पहले ही बहुत एरर हो जाता है ना ऐसे भी। हाँ, एरर तो होगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, श्रीकांत हाँ, माइक सर। थोड़ा पीछे रखना। हाँ सर। एंड उससे क्या होगा कि वो नहीं आएगा, क्या नाम है, वाइब्रेशन Distortion नहीं आएगा। कभी Okay, माइक पे गाना गाया? हाँ सर। गा के दिखाओ। नहीं सर। गा दे, नहीं सर। गा दे, गा दे, नहीं सर। गा दे, गा दे, गा दे, गा दे, नहीं सर। गा दे। भाग गया। चलो डन। Yes, sir. क्या है तू? शर्मा गए। Yeah. Just went off. अच्छा मत गा तो वापस तो आ कम से कम। ठीक है सर। गुस्सा हो गया। गुस्सा क्या होगा? शर्मा गए। आ गया सर। Offer हाँ मिला बेटा था ठीक है। गाने का। Okay guys, आगे चलें। Yes. Next time I'll not say anything to Shrikant for song and all. He is very bad in his pitch. Annoying though. Okay, where are we? Okay, now listen. Where are we? Where are we? Question. Listen. Calculate the uncertainty in the velocity of electron when it is present second excited state of
Li2+. गेटिंग इट? अगर एक इलेक्ट्रॉन Li2+ के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है तो तुमको अनसर्टेनिटी निकालनी है. अब सुन लो एक चीज, अब एक बात मुझे बताओ, ध्यान से समझना. ये Li2+ का एटम है, ठीक है, और लेट्स से ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है. ये रहा गया सेंटर और ये इसका रेडियस. Getting it? Now understand that this radius will denote the position of electron. Yes, sir. किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर ना गाइस, एवरीवन, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जहां पे ना इन लोगों ने अनसर्टेनिटी नहीं दे रखी होती, फिर भी अनसर्टेनिटी पूछ रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पूछा कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी when the electron is present in the second excited state. तो क्या मैंने अनसर्टेनिटी दिया क्या उसके पोजीशन के अंदर? नहीं सर. मुझे तो एक चीज पता है ना कि m इंटू डी पी इंटू डी एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ये पता है ना मेरे को. तो मास मुझे इलेक्ट्रॉन का पता है. मुझे माय गॉड, m dv dx is greater than equal to h/4. देखो, मुझे मास पता है इलेक्ट्रॉन का, मुझे dv निकालना है और मुझे dx नहीं दे रखा है. करेक्ट? हाँ सर. हाँ, तो एक काम करना, जब उन लोगों ने dx नहीं दे रखा होता और फिर भी dv पूछ रहे होते हैं, तुम dx को ना x ही लेना. मतलब जो रेडियस का वैल्यू होगा वही अनसर्टेनिटी ले लेना. अज्यूम 100% एरर. कितना बोलोगे? 100% error. फॉर एग्जाम्पल, श्रीकांत, मैंने तेरे को 2 रुपए दिए, तूने 4 रुपए गिने, तो तेरे से एरर कितना हुआ? 2 रुपए. 2 रुपए हुआ. कितना परसेंट 100%. एरर हुआ? 100% एरर हुआ. 100% एरर हुआ कि 2 रुपए दिए और तूने 2 रुपए ही गलत गिन लिए. तूने 100% अच्छा. एरर किया. तो 2 रुपए का अगर 3 रुपए गिनता तो मैं मान लेता कि 1 रुपया ही गिना है गलत. तो 1 रुपया 2 का 50% होता. करेक्ट? तो तूने 100% गलत गिना. तो ऐसा ही है कि जो मैंने तुमको 2 रुपए दिए ना, तो मैंने क्या बोला कि एक काम कर लो, अनसर्टेनिटी 2 ही मान लो, मतलब 100% एरर ले लो. तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके अंदर पोजीशन दे रखा होगा, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी मांग रहे होंगे, बट उन लोगों ने क्या नहीं दे रखा होगा? पोजीशन में अनसर्टेनिटी. हाँ, बट तुम्हें क्या करना है, जो पोजीशन है ना 100% एरर अज्यूम करना. अंडरस्टूड? मतलब वो श्योरली वहाँ पे नहीं है, ये हमें अज्यूम करना है. हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि तुम सर पोजीशन उसका अनसर्टेनिटी पोजीशन मान लो. रेडियस कैसे आया? क्या सर उसका पोजीशन रेडियस कैसे आया? रेडियस तो कहीं भी हो सकता है ना, किसी भी पॉइंट पे. और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, उसका पोजीशन कैसे अच्छा, देखा विद जाएगा ना? रिस्पेक्ट टू सेंटर. यस सर, समझा. समझा ना? हाँ, in this case radius will become dx. Correct. Please solve this question now. Calculate dv. तो अभी इस केस के अंदर जो dx होगा वो रेडियस ही हो जाएगा. So we have to calculate dv. हाँ.
सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? 9.1 into 10⁻⁻31। सर स्टार्टिंग में क्या बोला? 9.1 डेसिमल 9.1 हिंदी में इंटू 10⁻⁻31 kg ना? हाँ कर लिया, लिख लिया, हो गया। Okay, shall we start solving it now, guys? Yes, sir. यस सर Okay. करते हैं सर। Okay, shall we start solving it now? हो गया तुम्हारा? चलो अब मुझे ये बताओ, dx कितना निकला? 0.529 into n3 1.578 Armstrong. एक मिनट, क्या डालूं इधर? आगे 3 square upon 3 z क्या डालूं? 3 So what I'll get here? 1.578. सर ये n स्क्वायर बाय z होता है ना? क्या बेटा? n स्क्वायर बाय z होता है ना? हाँ, n स्क्वायर बाय z होता है। 1.578 into 578 to power minus 10 meter. Agreed? हाँ. तो m क्या हो गया? m, what is m? 9.1 into 10 to the power minus into 31 dv into dx is equal to h by 4 pi, correct? 4 pi, हाँ ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है। 4 pi कितना है? 4 into 3.14, करेक्ट? सर ये क्या किया सर आपने dv बेटा dp की जगह m into dv लिख लिया, करेक्ट नहीं लिया? 100% एरर ले लिया। हाँ मैंने बोला था मैं पोजीशन को 100% एरर ले लूंगा। हाँ सर तो ये dx हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो मेरी बात सुनो, dv की वैल्यू क्या आई? What is the value of dv I got? dv becomes equal to 13.6 6.63 into 10 raised to power minus 34 divided by 4 into 3.14 into 9 into 10 raised to power minus 31 into 1.57 into 10 raised to minus 10. तो देखा जाए 1.57, 6.63, 3.14 ये जाएगा 2 पे। 4 into 1.57 आई गेस, हाँ ठीक है ना, 4 into 1.57 ये करीबन 6 के इक्वल हो जाएगा। यस 6.2 करके कुछ आएगा, राइट? 6.2 into 9 कितना होगा? 55 ले लो, 55 ले लो। So I'll be getting 2 by 55 into 10 raised to power minus 34 minus 10 minus 31. तो ये हो जाएगा 10 raised to power 7. Agreed? अरे हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 200 बाय 55 into 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड। दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 3.8 करके, करेक्ट? कह दो हाँ। 3.6 आ रहा है। 6 आएगा? 3.6 आ रहा है। 3.6 क्या करके आ जाएगा, करेक्ट? Yes. मीटर पर सेकेंड। डन? Yes sir. आई गेस ओवर। यार एक बात बताओ, dx का फॉर्मूला क्या?
सुनो, dx of मैंने पोजीशन के अंदर 100% एरर लिया, करेक्ट? yes sir फिर भी वेलोसिटी के अंदर जो एरर आया वो कम आया कि ज्यादा आया? ज्यादा है यार। ज्यादा हाँ, है तो हाइजेनबर्ग ने कहा बोहर से कि भाई साहब भाड़ में जाओ। क्या? हाँ, कुछ वही ना बोला ना, मैंने क्या बोला? इनडायरेक्टली बोला। हाँ, इनडायरेक्टली बोला कि भाई साहब go to hell. Understood why? Because after taking error in position, he is still getting large error in velocity. Then he said that, dude, it is not possible to calculate the exact position and momentum of a subatomic particle like electron. So for God's sake, go to hell. Understood? क्या बात है, हर कोई एक दूसरे को लोग disprove कर रहा वेलोसिटी वाला तो किसको फॉर्मूला बोला? यूज करते हैं। हाइजेनबर्ग ने बोहर को। डन? ओ है। हर कोई किसी को डिस्प्रूव कर रहा है, तो हाइजेनबर्ग को किसने डिस्प्रूव किया? अरे किसी ने नहीं किया। हाइजेनबर्ग वाज द अल्टीमेट लेवल ऑफ गाय। बॉस प्लेयर। क्या जिसने भी क्वांटम के अंदर हाथ डाला ना, वो सारे सेफ हैं इस बार। सही। I told you last time also, no, if you can't convince, confuse them. ओह सर वो dx of कैसे निकाला सर? वो फॉर्मूला क्या था? एक मिनट रुक जा, कौन सा वाला बेटा? सर वो dx निकालना ना 0.5292। बेटा वो रेडियस का फॉर्मूला था। हाँ सर वो मैं भूल गया सर, एक बार बताओ। अच्छा, फॉर्मूला इज रेडियस का 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाय z। ठीक है? हाँ मीटर में लेना, इसलिए 10⁻⁻10 किया। Now guys, done? yes sir Okay. Yes. Shall we move ahead now? Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे चलें। Yes, sir. Okay. Yes. अटक गया ये भी कह Yes, रहा sir. है, छोड़ दो। ओके लिसन, ये क्वेश्चन है। इधर है सर। रुक जाओ, अटक गया भाई साहब। अभी ठीक है। लिसन, क्वेश्चन इज prove that an electron doesn't exist in the nucleus of an atom. Getting it? एक छोटी सी चीज बताना मुझे, small thing, right? This is the nucleus of an atom. This is a shell. Getting it? yes Now understand one thing. अगर ये न्यूक्लियस है और ये शेल है, इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो कितना होता है? What the radius? 10 raised to minus 15 meter. Very good. तो रेडियस comes out to be 10 raised to power minus 15 मीटर। तो मैंने क्या कहा था, जब पोजीशन नहीं दी होती, जो एब्सोल्यूट पोजीशन है उसको क्या मान लो? Error 100% error. 100% एरर ले लो। गेटिंग इट? तो dx क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 10 to the power minus 15 meter. श्रीकांत, सर ये 10 raised to power minus 15 कैसे आया? बेटा देखो ना, रेडियस क्या होता है न्यूक्लियस का? इन द रेंज ऑफ 10 to minus 15 मीटर ही होता है ना? और इसका सर पूरे एटम का 10 raised to power -10 के होता है ना? अप्रॉक्स रहता है, बट न्यूक्लियस का 10 to minus 15 रहता है, राइट और नॉट? यस सर। Yes, sir. अब एक बार बताओ, dx है जो पोजीशन होगा, मैं उसको ही एरर मान लूंगा 100%। हाँ। नाउ dx मिल गया, तो shall I say that m into dv into dx is greater than equal to h by 4 pi? yes sir. तो dv कितना आ जाएगा? 6.63 into 10 raised to power minus 34 divided by 4 into 3.142
into mass, that is 9.1 into 10⁻27 into dx 10⁻15. कोई डाउट इसके अंदर? तो 10⁻31 ना? हाँ 31 लिखा ना? अरे यार 1 सेकेंड, समझ में आया? इससे ये गया तो आया 10⁻12 है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. this into this 9 4 36 3 2 2 18, तो अप्रोक्सीमेटली 1/18 into 10⁻12 मीटर पर सेकेंड. सही है? Yes, sir. एरर इन वेलोसिटी कितना आ रहा है? इज मोर देन 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. हाँ सर. मतलब अगर एरर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है तो क्या पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है क्या? मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है क्या? नो सर. दैट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता. बिकॉज तुमने वापस करवाने बताओ की एक बार कोशिश हेडिंग करी का. तो उसका वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है. सर वो 10⁻−37 कैसे लिखा आपने? 31 होना लिखा चाहिए ना? सर वो डीवी किसका है? 31 लिखा. सर डीवी कौन सा लास्ट वाला पार्ट नहीं समझा. डीवी इलेक्ट्रॉन सर वही लास्ट वाला पार्ट समझाओ. हाँ एक और था. डीवी जो आया वो 10⁻12. सुन लो, डीवी जो आया वो 10⁻12 के करीब आया. करेक्ट? यस सर. एरर इन वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है. मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी एरर ऑफ वेलोसिटी जितना ही होगा तभी तो एरर इतना ही आएगा. भैया तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो एरर से या तो इक्वल होगी या तो ज्यादा होगी. करेक्ट? यस सर. हाँ, तो अगर पार्टिकल के अंदर जो एरर इन वेलोसिटी आ रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है तो पार्टिकल का वेलोसिटी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होना चाहिए. Yes, sir. तो इज इट पॉसिबल फॉर एनी मैटर टू अचीव स्पीड मोर देन स्पीड ऑफ लाइट? No, sir. नो सर. नहीं, पॉसिबल ही Not नहीं. possible. तभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ यस सर. हाँ. सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव. सर हाँ सर पर dx हमने लिया न्यूक्लियस का रेडियस और बेटा वो तो हमारा पता होना dv हमने चाहिए. निकाला जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए है. मोर देन वो पता होना चाहिए. सर तो इसका मतलब ये हुआ. क्या? ये सर इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं हुआ. कैसे आया? बेटा एक बात बता, जब मैंने न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करवाया तो उसी के पोजीशन जितना ही एरर लिया. यस सर. और उसने क्या किया? अच्छा. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल के दिया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के अंदर जो एरर था वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा था. हाँ सर, फिर क्या हुआ सर? इसका Yes, मतलब sir. ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज मूव कर रहा होगा बिकॉज एरर तो एक्चुअल वेलोसिटी से कम ही होगा ना. हाँ हाँ, तो पॉसिबल है क्या इलेक्ट्रॉन का Yes, स्पीड sir. ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट मूव करना? तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन sir. न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है. सर एरर ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा भी तो हो सकता है. बेटा एक बात बता, या किसी भी चीज का एरर जो होगा वो 100% ही होगा ना मैक्सिमम, या तो सर एग्जाम्पल 2 रुपए को 5 रुपए गिने तो. मैं गिर जाऊंगा. 150% पॉसिबल है. बेटा the thing is error is always lesser than the actual amount, right? अगर 5 सेंटीमीटर का लेंथ खींच रहे हो तो उसमें गलती क्या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा करोगे? स्केल दे दूंगा हाथ में तो. सर पर आपने तो बोला 100% हो सकता है गलती. मैंने कहा अज्यूम करो 100%.
मैक्सिमम एरर तो 100% ही होगा ना। हाँ तो ज्यादा फिर नहीं होगा। सर मैक्सिमम ही देख रहे हैं तो और भी हो सकता है ना। नहीं ना, किसी भी चीज का मैक्सिमम एरर अरे कितना होगा? ज्यादा 100%। गलती कैसे करेगा? परसेंटेज 100 से कैसे जाएगा ऊपर यार किसी भी चीज का? अच्छा ज्यादा कितना पूरा गलती करेगा ना। हाँ पूरा ही गलती कर दिया। इस मतलब ये बहुत ज्यादा खराब केस है 100%। उससे खराब केस पॉसिबल नहीं है। नहीं है, और कोई तो पॉसिबल नहीं है। कैसे बात कर, 2 रुपए को 5 रुपए गिन लिया तो। ओ गॉड, अगर मैं तुमको किसी भी बॉडी का हाइट वेट और ये सब कैलकुलेट करने को दूं, तो ऑब्वियसली बात है तुम एरर वेट से तो कम ही करोगे ना भैया। 5 किलो का 5.1 कैलकुलेट कर लोगे, 4.9 कैलकुलेट कर लोगे, 4.95 कैलकुलेट करोगे, 5 का 5 एक्स्ट्रा कर दिया तो बहुत खराब केस होगा ना। 100% माना जाएगा ना उसको तो। 5 का 10 किलो। हाँ तो अच्छा समझ में आई मेरी बात? यस सर। यस सर। चलो आगे चले। ओह टाइम हो गया। सर एक मिनट। यस सर।